at the same time, the main part of the universe when we talk about education is also deeply affected. And how education is affected, that part is also very important, which we have to understand. When education is affected, and it is deeply affected, how it is affected? Because all students, they are at their respective residences. They are with their parents. They are not in schools. They are not in colleges. They are not in universities. At present, all these youth, they are with their parents at their respective residences. So when they are at their residences, we got to be taking into consideration very deeply how these children have to be taken care of, how they have to be kept positive, and whatsoever role teachers were taking care of earlier, now the parents are taking care of. And if the parents are taking care of how parents should handle their children, you got to be polite, you got to be nice, you got to be taking care of them. That part is very important, which we have to understand, all of us. Ladies and gentlemen, Corona, well, this has come, this will also go away. When we talk about India, when we talk about Indian education system, when we talk about all Indians, it's very important for all of us to understand. We believe in Vasudev Kutumbakam. When we say Vasudev Kutumbakam, that means one world, one love, and one family. That means the entire universe is one family. All of us, we are together. In this journey, we are together. And in this participation, we are together. And we got to take the whole world together. Nobody is separate. We got to be taking care of everybody, irrespective wherever they are staying, wherever they are living. We got to be taking care of everyone world over, and that is called Vasudev Kutumbakam. ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है. जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बातचीत करते हैं, so our chamber ICSI at present is taking care of, during the daytime we try and do the beaming world over wherever it is possible. We try to reach out teachers, educators, youth, counselors, psychologists, and people those are associated directly or indirectly with the entire education system. We are trying to reach them wherever they are. And what exactly we are trying to help from our chamber? First of all, at this point of time, सबको डिजिटल लिटरेसी चाहिए. यानी कि सब स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो वाइस चांसलर्स हैं. सबके साथ अगर आप देखें तो सब इससे में स्ट्रगल कर रहे हैं. वो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से, और हर एक को टेक्निकल ग्लिचेस हैं. कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है. कोई भी, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, चाहे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा है, हिट एंड ट्रायल कर रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है और कोशिश कर रहा है. एंड एट द सेम टाइम, डिजिटल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन एजुकेशन. उसी के साथ साथ पहले क्लासरूम में एजुकेशन थी, अब नई नई चीजें आ रही हैं. ब्लेंडेड लर्निंग आ रही है, फ्लिप लर्निंग आ रही है, देन सेल्फ एम्पावरमेंट लर्निंग आ रही है. हर एज ग्रुप का इंसान सोच रहा है कि इस पेंडेमिक के टाइम में मैं अपने आप को एजुकेट कैसे कर सकता हूँ. थर्डली, बहुत सारे मोटिवेटर आ रहे हैं, नए नए मोटिवेटर्स आ रहे हैं. एंड इट्स सच ए प्लेजर टू हियर so many young boys and girls world over, they are giving such a wonderful suggestion, they are giving such a creative thought processes. All of them, they are coming. Then children online are learning digital marketing. When we talk about digital marketing, excuse me, children are trying to learn what are the basics of scale, sales, marketing, customer service, public relation, virtual march, and so many things are coming up. So our chamber is trying to help in that also. एक इसके साथ और चीज है, एम्पथी. सिंपथी नहीं चाहिए, एम्पथी चाहिए. सिंपथी आप किसी के साथ एक बार, दो बार, तीन बार कर सकते हैं. एम्पथी मीन्स you got to be empathetic throughout. You got to be understanding
And at the same time, ladies and gentlemen, everybody in the organization has to play a very important role. आप कहीं भी स्लैक नहीं कर सकते। डिजिटल मोड के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ समझ आ जाती है, आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आप आधी नॉलेज लेकर और बच्चों तक पहुंच जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज लेनी होगी, और इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है। बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है। सो द रोल ऑफ अ टीचर विल आल्सो चेंज। यू आर नाउ फैसिलिटेटर। सब्जेक्ट की हर चीज अवेलेबल है। अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट को भी ले लेता हूं और गूगल बाबा के पास जाता हूं, तो कैन यू इमेजिन हाउ मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टुडे ऑन द गूगल। सो दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। बच्चों को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बच्चों को एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके साथ जुड़ी हुई है बच्चों की वेलनेस और बच्चों की हेल्थ। मैं हमेशा सोचता हूं और हमेशा इस पे रिसर्च करता हूं, बहुत ब्राउज करता हूं, बहुत सारी वीडियोस देखता हूं कि म्यूजिक थेरेपी हाउ इट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। बहुत बार आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन जो आपके टीम के मेंबर्स हैं वो अपना 100% डिलीवरी नहीं करते। आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत डिफिकल्टी आती है, जिसकी वजह से अगर पूरी चेन में, साइकिल की एक चेन ले लीजिए, साइकिल चल ही नहीं सकती अगर एक कड़ी भी उसके अंदर कमजोर होगी। हर एक कड़ी को मजबूत होना पड़ेगा। अगर एक भी कड़ी उसमें हल्की होगी तो आपका काम नहीं बन पाएगा, चेन टूट जाएगी, गाड़ी नहीं चलेगी। तो हर एक चेन की लिंक को ये समझना पड़ेगा कि उसका कितना महत्व है, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह। और बहुत बार हम ये कहते हैं हमको ये अच्छा नहीं लगता, ये हमें आता नहीं। अरे नहीं आता तो हम सीख लेंगे। अगर मैं इस एज में सीखने को रेडी हूं, तो आप सबको जहां पर भी आप हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, सीखिए। आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप सिर्फ लोगों की सिंपैथी लेते रहेंगे, एम्पैथी नहीं ले पाएंगे। दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये चाहता हूं, आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भर विश्व गुरु भारत दोबारा कैसे बन जाएगा? आज सुबह से शाम तक हायर एजुकेशन की हमारी कॉन्फ्रेंस हुई और यही बातचीत हुई। भारत कोई आत्मनिर्भर अपने आप जादू की छड़ी से नहीं हो जाएगा, और विश्व गुरु भी अपने आप नहीं बन जाएगा। सभी लोगों को उसमें प्रयास करना पड़ेगा। और आसान रास्ता मत ढूंढिए कि मैं पीछे की गली से चुपचाप निकल जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इस संसार में आए हैं तो डिफिकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगी। हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, कितनी तपस्या, कितने एफर्ट्स, कितनी चीजें उन्होंने, कितने त्याग किए होंगे, तब उसके बाद जाके, और तब भी आप देखो कितनी चीजों को समझना जरूरी है। इस संसार में कोई रास्ता नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। अगर कर्म को अच्छे से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और म्यूजिक थेरेपी की बात मैं इसलिए बार बार करता हूं, जो म्यूजिक है, और अगर किसी को इसका वीडियो मिलता है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। म्यूजिक थेरेपी में आपको कुछ भी मिलता है हमसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने दिमाग में पिछले 42 साल के सफर में ये कन्विंस्ड हूं कि म्यूजिक थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी। अगर मेरा मूड भी खराब है, मैं कुछ म्यूजिक सुन लूं तो मैं अपने आप को शांत कर सकता हूं। मैं लॉर्ड शिवा का कुछ म्यूजिक सुनूं तो मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूं, एनर्जी दे सकता हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी गुरुजन हैं, जिनकी भी हम बातचीत करते हैं, अब जैसे वो गीत भी है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब वो कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये नहीं कि करती थी बसेरा। है बसेरा तभी हो पाएगा जब हम और आप मिलके दोबारा से, चिड़िया तो बाहर आ गई है, शुरुआत हो गई है, ग्रीनरी बाहर हो गई है, और हम लोग घरों में हैं। और मेरे को बहुत दुख है इस बात का, अंदर से पीड़ा भी है कि केसेस बढ़ रहे हैं, और ये केसेस नहीं बढ़ने चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। जब आप औरों के सुख के लिए सोचेंगे, समाज के सुख के लिए सोचेंगे,
और जब आप जन समूह के सुख के लिए सोचेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति अपने आप होगी। दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो म्यूजिक थेरेपी ये मेरे बार बार किसी मन के कोने में आती है। आप लोगों में से जितने भी लोग वेबिनार में आते हैं और जितने भी गुरुजन हैं, आप सब मेरे टीचर हैं। ढूंढिए, यूट्यूब पर ढूंढिए, टेड टॉक पे ढूंढिए, रिसर्च में ढूंढिए, तानसेन ने वो राग कैसे गाया होगा और उस राग से दीपक कैसे जले होंगे। उसी तरीके से राग इतने सारे हैं, कोई सुबह का राग है, कोई दोपहर का है, कोई अर्ली मॉर्निंग का है, कोई रात्रि का है, कोई मधुर राग है, कोई विरह का राग है। ये सारी चीजें लेके हम जब चलते हैं तो रागों का ज्ञान को लेते हुए जिनका भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, और मैं ये कहता हूं साइंस वाले लोग हैं, मैं कुछ स्कूलों में जाता हूं, आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ये टॉक आपकी मोटिवेशन की टॉक है। 15 तारीख के बाद हमने मोटिवेशनल टॉक शुरू कर दिया है। मैं कुछ स्कूलों में जाता हूं, प्रिंसिपल के बाहर जो बैठे होते हैं वो मुस्कुरा, वो आपको ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी किंगडम में और बड़े एम्पायर में आप आ गए हैं। जमीन पर हम सब आ जाएं, हम्बल हो जाएं, पोलाइट हो जाएं, कर्टियस हो जाएं। ऐसी फीलिंग मत दीजिए। सीरियस होने से, किसी को सीरियसनेस अपने चेहरे पे दिखाने से आप किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते। मुस्कुराहट रखिए, प्यार से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। कोई स्कूल गांव में हो सकता है, कोई शहर में हो सकता है, कोई अंग्रेजी में बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई अपनी मातृभाषा अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करता है। तमिल की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी हिंदी की है, हिंदी की भी उतनी वैल्यू जितनी इंग्लिश। मैं हर भाषा सीखने को रेडी हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा जॉब मिलता है, मेरा कारोबार चलता है, मेरा बिजनेस चलता है, मेरा स्टार्टअप चलता है, तो मैं कोई भी भाषा सीख लूंगा। मैं भाषा इसलिए नहीं सीखूंगा कि मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। अदरवाइज समटाइम वी गेट दैट इम्प्रेशन। अगर मैं अंग्रेजी में आपसे बात कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ because a lot of people have joined this particular webinar throughout the world. Those are watching this particular program, and when they're watching this particular program, I want they should be facilitated. We should always think about the comfort level of others. जब आप दूसरों के हित के लिए सोचेंगे तो God will always help you. That part is very important. So music therapy is my request. Anybody who finds, और मैं शायद हो सकता है अगले हफ्ते से अवार्ड भी अनाउंस करने वाला हूं चेंबर से। एवरी वीक देयर विल बी वन अवार्ड whoever finds out the best out of music therapy. और देशभक्ति के गाने देखिए, पैट्रियोटिक सॉन्ग देखिए, मोटिवेशनल सॉन्ग देखिए, पॉजिटिव सॉन्ग सोचिए, एनर्जेटिक सॉन्ग सोचिए। आप रागों के ऊपर भी सारे गामा पादे नी सा सा नी दा पा गा रे सा जैसे करके सारे गा रे गामा गामा दा पा दा नी सा। ढूंढिए, कुछ भी मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है, ढूंढिए। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग एंड रॉबस्ट माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और रॉबस्ट रहिए माइंड में। माइंड से आप बिल्कुल एकदम वो रहिए। हायर कॉग्निटिव स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉग्निटिव स्किल है, एक हायर कॉग्निटिव स्किल है। इस पे रिसर्च कीजिएगा, इस पे बहुत सारी चीजों पे हम आपसे बातचीत। देन कम्स दी स्पेसिफिक ट्रेड टेक्निकल स्किल्स कि जो भी चीज आप लाइफ में कर। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, माता पिता से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों को किसी बात के लिए कंपेल मत कीजिए, बच्चों को मार्क्स के लिए कंपेल मत कीजिए, बच्चों को परसेंटेज के लिए मत कीजिए। हम इतना प्रयास करेंगे, मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा, मैं पूरी जिंदगी के जो जितने भी श्वास है मेरे संसार में, मैं वो सारे लगा दूंगा। एजुकेशन के सिस्टम को बदलना होगा, एजुकेशन के सिस्टम को एम्पावर करना होगा। ये जो कंपटीशन का इंडस्ट्रियल एरा के टाइम में आ गया कि बेंचों पे बच्चों को बिठा के सामने एक टीचर पढ़ा रहा है, ये सब खत्म करना होगा, ये सब कुछ बदलना होगा। बच्चों की क्रिएटिविटी को ध्यान देना होगा। माई ग्रैंडचाइल्ड एंड माई चाइल्ड knows better about the technology than me because they are born with these gadgets. Let's start respecting that. Let's start giving value to that. और ultimately क्या देना है? सारी पढ़ाई का क्या मतलब है? We have to give life management skills. बच्चों को life management skills देनी है। हमने ये जो वेबिनार एक नई शुरू करी, बहुत सारी वेबिनार सीरीज हो रही हैं, लेकिन इसके अंदर हमने जो सीरीज ये स्टार्ट किया, इसके अंदर हमारे वेबिनार में इस 5 जून को हमने क्यों स्टार्ट किया? व्हाई डिड वी स्टार्ट ऑन 5th of June?
देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा अध्ययन करने के बाद और बाहर की कंट्री से बहुत सारा इनपुट लेने के बाद, हमारे जितने भी रिसर्च स्कॉलर डिफरेंट कंट्रीज में हमारे चेंबर के हैं, उनसे बात करने के बाद ये पता लगा कि जो नेक्स्ट क्राइसिस आने वाली है और जो प्रॉब्लम आने वाली है आपकी, वो वाटर क्राइसिस की आने वाली है, जो आपका पीने का पानी है। The people will have misunderstanding. People will have lots of difficulties with regard to water. There will be a water scarcity. There will be a water conservation required throughout the world. We all have to take care of. So we will talk about it. अभी बच्चे घरों में हैं, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों को इस समय जल की एक एक बूंद बचाना बताइए। और जब स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन में वहां पर भी बच्चे पानी को बचाएं। और जो लोग जॉब्स में जा रहे हैं, फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, आप पिक्चर हॉल में जा रहे हैं, आप थिएटर में जा रहे हैं, आप होटल में जा रहे हैं, आप पब्लिक प्लेस के किसी टॉयलेट में या किसी और जगह पे जा रहे हैं, हर जगह पर आपको पानी की एक एक बूंद बचानी होगी। कई जगह मैं जाके देखता हूँ टॉयलेट का है, जो पब्लिक टॉयलेट है, कोई बॉदर ही नहीं करता है, वहां रबर ही उसका जो है लीक करता रहता है, टुप टुप करके उसमें से। आप सोच सकते हैं कुछ जगहों पे लोग 10-10 किलोमीटर से दूर से पानी लेके आते हैं। लेट अस वैल्यू ह्यूमन रिलेशन। वसुधैव कुटुंबकम वैसे नहीं बन पाएगा। नाउ एवरी सैटरडे मॉर्निंग, मंडे टू फ्राइडे 7 से 8 हम शाम को एजुकेशन की बात करते हैं। सैटरडे मॉर्निंग को हम सुबह आप लोगों के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि इसकी बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि देयर आर मोर देन 500 मिलियन फॉलोअर्स वर्ल्ड ओवर ऑफ बुद्धिज्म। लॉर्ड बुद्धा के पास ऐसा क्या था? लॉर्ड बुद्धा ने घर भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता भी छोड़ दिया, घर वगैरह सब सुख साधन सब छोड़ के बाहर आ गया और सारी जिंदगी आखिर तक सब कुछ और आनंद। लास्ट में उसने कहा मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, इतने बजे मैं जाऊंगा, इतना होगा, सब कुछ होगा। बुद्धा की टीचिंग क्या है? बुद्धा की फिलॉसफी क्या है? बुद्धा क्या कहना चाहते थे सारे संसार को? उन्होंने क्या बताया और उसका आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या रेलेवेंस है? मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं अपनी वेनरेबल डॉक्टर धम्मापिया जी को, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। रोजाना हर वेबिनार में हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ आते हैं। और मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि धम्मापिया जी, वर्ल्ड में जितने भी बुद्धिस्ट हैं उन सबको जोड़ दीजिए और इकट्ठे हम हो जाएं और एक ये सोचें कि बुद्धा ने असल में क्या कहा, वो क्या चीज थी। और आज के बच्चे अपनी एजुकेशन में अपने गैजेट्स के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी को, उसको हम अपने टीचिंग सिस्टम में कैसे लेके आए, उसकी बातचीत करते हैं। तो एवरी सैटरडे 9:30 in the morning, please do join us. It would be a pleasure to have all of you with us. सैटरडे इवनिंग पढ़ाई तो तभी करोगे ना, लॉर्ड बुद्धा को तो तभी मिलोगे जब आपकी सेहत ठीक होगी। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी वेलनेस का ख्याल रखिए और सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। सारे बच्चे हंसेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, रात को तो नींद नहीं आती और सुबह मम्मी आके चद्दर खींचती है तो ये होता है। मम्मा क्या कर रहे हैं, आजकल लॉकडाउन है, कोरोना वायरस में स्कूल तो जाना नहीं है। अरे टीचर का क्या है, मैंने मोबाइल ऑन करके छोड़ दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप उठना नहीं चाहते हैं। आप सुबह उठिए, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपके विचार अच्छे रहेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप क्रिएटिव रहेंगे, आप डायनामिक रहेंगे, आप वाइब्रेंट रहेंगे और आपकी बॉडी में से इतनी ऊर्जा निकलेगी। कभी देखिए इस चीज को करके। और दूसरा निवेदन करूंगा, योगा कीजिए, मेडिटेशन में जाइए, नेचुरोपैथी में जाइए और साथ में ऑर्गेनिक खाना भी लीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे इतने सालों का तजर्बा है, नो, मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूं, मैं सिर्फ बच्चों का दोस्त हूं, मैं सिर्फ बच्चों का दोस्त हूं। आई वॉन्ट टू लव चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू बी विद चिल्ड्रन, आई वॉन्ट दिस एंटायर यूनिवर्स शुड बी विद चिल्ड्रन। ये सारा पार्ट उस तरीके से लेके चलना है, इसलिए हेल्थ और वेलनेस बहुत जरूरी है। सो वर्ल्ड ओवर Ayurveda for global wellness every Saturday 7 to 8 p.m. we bring to you. You can come on the Facebook also.
You can come on Dr. Gulshan Sharma's page. You can open the watch party. You can enjoy over there. अरे भैया, आप स्मार्ट रहोगे, आप यंग रहोगे, आप अच्छे रहोगे, आप एनर्जेटिक रहोगे, किसी और को प्यार मत करो, पहले अपने आप को प्यार करो। अपने आप को प्यार करने का मतलब क्या है? अपने आप को फिट रखो। अपने आप को फिट रखने का मतलब क्या है? ठीक भोजन करो, ठीक से सो, ठीक से उठो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो हमेशा। संडे मॉर्निंग मैं हमेशा बोलता हूं और हमेशा बातचीत करता हूं, संडे किसने कहा कि हॉलिडे होता है? हु टोल्ड संडे शुड बी अ हॉलिडे? कई बार मजाक लगता है अपने दिमाग के अंदर, क्या संडे को मॉर्निंग में हम टॉयलेट नहीं जाते? संडे को ब्रेकफास्ट नहीं करते? संडे को लंच नहीं करते? संडे को ऑक्सीजन नहीं लेते? संडे को बाकी काम नहीं करते? तो भाई किसने बोल दिया तुमको संडे को काम नहीं करना? संडे शुड बी मोर प्रोडक्टिव। मेरा संडे बाकी दिनों से ज्यादा होता है। मंडे टू सैटरडे यूनिवर्स के साथ रहो। संडे को जितना बैकलॉग है पूरे हफ्ते का उसको भी खींचो, उस तरीके से लेके चलो। संडे को ज्यादा प्रोडक्टिव करो, जितना प्रोडक्टिव कर सकते हो उतना करो। जितने लोगों के बारे में, जो भी आपके पेंडिंग वर्क है उनके बारे में सोचो। एवरी संडे मॉर्निंग हमारे साथ प्रोफेसर साहब आते हैं अमेरिका से, एंड व्हेन ही जॉइन्स अस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोफेसर साहब भी एक परम पूजनीय हैं। जैसे धम्मा पिया जी हैं, ये भी एक धम्मा पिया जी की तरह परम पूजनीय हैं। प्रोफेसर सतेंद्र तिमान यूएसए से आते हैं। जैसे मुझे पागलपन है एजुकेशन को एम्पावर करने का, इन्हें भी पागलपन है सारी सभ्यता को अच्छा करने का, सारे संसार को अच्छा करने का। और हमेशा सोचते हैं ये कि क्या किया जाए, इंडिया की जो वेदों की खुशबू है, सुगंध है, उसे सारे विश्व में कैसे फैलाएं। ये हर रविवार को सुबह 9:30 बजे आते हैं। आजकल श्रीमद् भगवत गीता की बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, हर संडे हम सुबह 9:30 आएंगे। तो मैंने भी इनके साथ ये प्रण ले लिया है, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं इस संसार में हूं, जब तक प्रभु ये श्वासें चला रहे हैं, जब तक प्रभु ने ये जीवन दिया हुआ है, मैं उन्हें अर्पित करता हूं कि मैं शिक्षा को प्रासंगिक बनाना चाहता हूं। और नंबर 2, मेकिंग एजुकेशन रेलेवेंट के अंदर इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज, इंडियन एथिक्स और जो कुछ भी हमारी हेरिटेज में है उसको सारे ब्रह्मांड में उसकी सौगंध जानी चाहिए, खुशबू जानी चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है, सुगंध तो तभी जा पाएगी जब प्रोफेसर सतेंद्र तिमान साहब के साथ आप रविवार सुबह यानी कि संडे मॉर्निंग 9:30 बजे या तो जूम वेबिनार पर या फेसबुक पर लाइव मिलेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। क्या मजा आता है, एक नए संसार, एक नई दुनिया में ले जाते हैं। और हम सिर्फ उपनिषदों की बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता की बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसका एजुकेशन में क्या रेलेवेंस है, इसका मैनेजमेंट एजुकेशन में, इंजीनियरिंग एजुकेशन में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, किसी भी सब्जेक्ट में श्रीमद् भगवत गीता का क्या रेलेवेंस है, दैट वी टॉक ऑन संडे मॉर्निंग एट 9:30। अब आ गई संडे शाम। संडे का दिन गुजरा, बहुत बढ़िया गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। और संडे शाम को 5 बजे, जो भारत के 5 बजते हैं, तो अलग अलग टाइम जोन हैं, हमारी 10 कंट्रीज हैं आसियान के अंदर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जब हम बातचीत करते हैं तो म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ब्रुनोई है। और उसके आगे थोड़ा सा चलते हैं तो हमारे 200-250 परिवार और जुड़ते हैं बहरीन से। और खासकर मैं मिडिल ईस्ट के लोगों का अब तो दीवाना हो गया हूँ। हर रोज मिडिल ईस्ट के बच्चे इतने आते हैं, इतने टीचर आते हैं, इतने सारे लोग इस वेबिनार में जुड़ते हैं। आप तो कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। मैं मतलब इतना ज्यादा प्रभावित हूं आप लोगों से, जितनी कल्चरल वैल्यूज को आप लेके चल रहे हैं। आप नॉन रेजिडेंट इंडियन जरूर हैं, आप विदेश जरूर गए हैं, आप बाहर जरूर हैं, आप दोहा कतर में हैं, ओमान में हैं, अबू धाबी में हैं, शारजा में हैं, आप दुबई में हैं, आप कुवैत में हैं, या जहां जहां, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, जहां भी आप, और शाम को आके मिलते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। आप सब लोग इतने अच्छे हैं। और लोगों को लेके आइए, और टीचर्स को लेके आइए, और फ्रेंड्स को लेके आइए। वॉच पार्टी खोलिए, फेसबुक पे डॉक्टर गुलशन शर्मा का पेज खोलिए। पूरे संसार को हमने अपने साथ जोड़ना है।
और यही बच्चे जो इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, आप ही एजुकेशन सिस्टम को बदलोगे, आप ही बदलोगे, कोई और नहीं बदलेगा। और एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स में अब टीचर्स यानी कि एजुकेशन फ्रेटर्निटी भी है, उसके साथ साथ कॉर्पोरेट भी हैं, उसके साथ साथ पेरेंट्स भी हैं, उसके साथ साथ बच्चे भी हैं, और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट के डिफरेंट जो अदारे हैं वो सब लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं। ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, अभी परसों रात को जब बातचीत हो रही थी, परसों रात को थी कि कल रात को थी, इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और मैडम मिश्रा जब बॉम्बे से आई और उन्होंने बातचीत करी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ बातचीत करके। उन मैडम ने एक बात कही और मुझे बहुत हंसी आई उस बात के ऊपर। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये जो शाम का प्रोग्राम है आप लोगों के साथ, ये बेसिकली आप में एनर्जी डालने के लिए है, ऊर्जा डालने के लिए है, आपको हैप्पी करने के लिए है, आपको एम्पावर करने के लिए है। आपके अंदर मैं चाहता हूं एक ऐसी शक्ति जो अंदर है उसको बाहर निकालना है, एक आपके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको पॉजिटिव करना है। तो मैडम मिश्रा ने एक बात कही कि डॉक्टर शर्मा, इस समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। मैंने कहा क्या? कहते इस समय हम प्रिंसिपल नहीं है, इस समय पेरेंट्स प्रिंसिपल है। मैंने कहा वो कैसे, बताइए मुझे। तो उन्होंने बड़े हंस के बताया मुझे कि डॉक्टर शर्मा, इस समय टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट का ज्ञान दे रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो पीछे चुपचाप बैठ के और देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है, ये टीचर किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, सिस्टम कैसे चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ऑडिटिंग चाहिए सब्जेक्ट की, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स बच्चों को किसी बात के लिए फोर्स मत कीजिएगा। आज के बाद बच्चों को कंपेयर भी मत कीजिएगा, किसी बच्चे को कंपेयर मत कीजिएगा। और जैसे पीछे एपी शर्मा जी दोहा से आए, कुछ और भी आए, हमारे पास इतने सारे, प्रेम जी आए कुवैत से, उन्होंने भी बातचीत किया, और आशा मैम पहले कुवैत से आई, उन्होंने भी बातचीत की, बहुत सारे लोग आए, प्रेमा मैम आई उस दिन दुबई से, उन्होंने भी बातचीत की, हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने ये बातचीत की कि बच्चों को लाके आप, गेस्ट आए होते हैं उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि इनको पोएम सुनाओ, तुम्हारे वो सुनाओ, तुम ये कहानी सुनाओ, तुम वो सुनाओ, और उसके बाद उन बच्चों को फोबिया हो जाता है कि जब कोई अंकल आएगा तो मेरे को यहाँ खड़ा करेंगे, वो इसलिए आना ही नहीं चाहते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को प्यार कीजिए, बच्चों को समझिए, बच्चों को समझना होगा, बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए। बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमको अच्छा होना पड़ेगा। दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो आसियान का प्रोग्राम है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं चेंबर के, वो थाईलैंड में हैं, और आजकल मलेशिया से हमारे साथ दातो रमेश कोडामल जी भी जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से कंबोडिया से संदीप मजुमदार जी हैं, नरेश जी हमारे साथ म्यांमार से हैं, पांडे जी भी हैं वहां से, वो भी जुड़े हुए हैं, एक अपने मोहन गुंठी जी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से सराफ साहब हैं, वो फिलीपीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो उज्बेकिस्तान में हैं, कजाकिस्तान में हैं, तुर्कमेनिस्तान में हैं। बहुत सारे प्रोफेसर और बहुत सारे एजुकेशन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो 15 अगस्त है, सॉरी 15 जुलाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 15 अगस्त तो अभी आना है, मुझे बार बार भारत का स्वतंत्रता दिवस याद आ रहा है। तो 15 जुलाई की जब हम बातचीत करते हैं तो वर्ल्ड का ये यूथ स्किल्स डे, और यूनाइटेड नेशन ने इस डे को एक कौशलता के लिए, विश्व में जो बच्चे हैं हमारे अलग अलग कंट्रीज में, उनकी कौशलता के लिए इसको डिक्लेयर किया। और इसी के साथ हमने एक बड़ी अच्छी जर्नी शुरू करी कि बच्चे क्या चाहते हैं। जब तक बच्चों की आवाज नहीं सुनेंगे, मेरा मन है आस्ता आस्ता मैं इतने सारे बच्चों को इस प्रोग्राम में लेके आना चाहता हूं कि अल्टीमेटली ये प्रोग्राम बच्चों का ही हो, टीचर बैठे और सुने और बच्चे बोले और बच्चे पार्टिसिपेट करें। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। वो दिन भी आएगा, वो दिन आने वाला है। और याद रखिएगा, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे है, 12 अगस्त को वेंसडे है, इंटरनेशनल यूथ डे है। मैं 150 कंट्रीज के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने वाला हूं इंटरनेशनल यूथ डे पे, और यूथ की एम्पावरमेंट होगी इतने अच्छे ढंग से। वी विल वर्क आउट ए स्ट्रेटजी, आवर चेंबर इज वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स आर सपोर्टिंग अस, हेल्पिंग अस। I have already told my advisors, I've already told my regional presidents and country presidents and couple of other people world over, they are working on this project. आज आपकी 23 तारीख हो गई है, हमारे पास एक हफ्ता है इसका और 12 दिन है आगे के। तो इन 3 हफ्तों के अंदर
हमने 150 कंट्रीज की पार्टिसिपेशन से पूरे वर्ल्ड के लोगों को, बच्चों को आप एक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। जो बच्चे जिस कंट्री से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं आपको बाद में एड्रेस दूंगा, उस पर अपना डिटेल भेजिएगा। मैं युवा के साथ, मैं यूथ के साथ हूं, मैं यूथ के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं टीचर्स के साथ नहीं हूं, मैं प्रिंसिपल्स के साथ नहीं हूं। मैं बच्चों की बात को सुनूंगा, मैं बच्चों की आवाज को सुनूंगा। आपने इतने साल बहुत आवाज दी, अब बच्चों को आवाज देने दीजिए। और बच्चे बार बार ये कह रहे हैं मेरी आवाज सुनो, और वो बड़ा अच्छा गाना भी है, मेरी आवाज सुनो। चलिए इसकी बाद में बातचीत करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ विमेन एम्पावरमेंट, जब हम बच्चों की आवाज कर रहे हैं और बच्चों की बातचीत कर रहे हैं, तो हम गर्ल चाइल्ड के ऊपर फोकस करेंगे और विमेन एम्पावरमेंट पे करेंगे। सो वी विल टेक 150 गर्ल्स फ्रॉम 150 कंट्रीज, they all will be together on one platform. It's a women empowerment what we will work on. और कितना अच्छा है बच्चियों के लिए। And I feel so proud of my daughters and my granddaughters, all of them, those are here, and the entire universe is my children now, and they all are my family. ये ग्लोबल वसुदेव कुटुंबकम है। और यहाँ पर जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। आज की जो नारी है उसे मौका तो दीजिए, आज के गर्ल चाइल्ड को मौका तो दीजिए, उसे अपना हुनर बताने तो दीजिए, उसे आगे आने तो दीजिए, उसकी आवाज तो सुनिए। इस बच्चे के पास बहुत कुछ है। विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे मेरे साथ बहुत सारे मेरे मित्र जुड़े हुए हैं। एक वाव फैक्टर के भी मेरे दोस्त हैं जो बहुत ही करीबी हैं मेरे। इन दिनों में उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है और बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंसियर हैं, नेक हैं। उनकी तरह और भी बहुत सारे इंसान हैं। अमित पुंधीर जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी। और हाँ, मेरे जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, भारतीय शिक्षा मंडल से हमारे मुकुल कनितकर जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो शिक्षा के माध्यम में संस्कृति को इतने अच्छे से पैकेज कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी हैं, वो इंडक्शन प्रोग्राम में एआईसीटी के साथ बहुत सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। जो नए बच्चे स्कूलों से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आते हैं इंजीनियरिंग के लिए, उनका मैंने एक इंडक्शन प्रोग्राम भी अटेंड किया। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। आई वॉन्ट टू बी ए स्टूडेंट वंस अगेन एंड आई वॉन्ट टू रिमेन स्टूडेंट टिल एंड, क्योंकि स्टूडेंट रहना ही अच्छा है, स्टूडेंट ही हम सब कुछ सीख सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर आई इंट्रोड्यूस टुडेज सेलिब्रिटीज, जिसमें आप 6 बच्चों से मिलेंगे और आज के डिस्टिंग्विश स्पीकर से मिलेंगे, उससे पहले मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा। हर इंसान के पास आइडियाज हैं। इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास आइडिया नहीं है। आज के बाद किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि आपके पास आइडिया नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई गुण नहीं है, जिसके पास कोई ना कोई आइडिया नहीं है। पहली बात, हम सबको बच्चों को एनकरेज करना है। और नंबर 2, जो कुछ भी करना आपको अच्छा लगता है, मैं हर बच्चे को एक ही बात कहना चाहूंगा, जो कुछ भी आपको करना अच्छा लगता है और जिसके करने से कुछ कुछ होता है, जब कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ होता है, और जब कुछ कुछ होता है तो सब कुछ होता है। तो इसलिए whatsoever human mind can conceive and believe, whatsoever human mind can conceive the idea and believe the idea, you can achieve the idea. मैं इस कैंपेन को, मैं इस शिक्षा की प्रणाली को प्रासंगिक करने के लिए मेकिंग एजुकेशन रेलेवेंट को जब तक जीवित हूं, हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक पूरे एजुकेशन के जितने भी टीचर, जितने भी एजुकेटर, जितने भी काउंसलर, जितने भी साइकोलॉजिस्ट जुड़ना चाहते हैं, जिनके पास कुछ भी शेयर करने के लिए है, आइए इस प्लेटफॉर्म पे, जुड़िए इस प्लेटफॉर्म पे। जिस बच्चे का मन करता है कि मैं चाहती हूं कि मुझे ग्लोबली, वर्ल्ड ओवर आगे जाना है, बिकॉज वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू गिव पॉजिटिव एनर्जी टू एवरी चाइल्ड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, let's come together, let's be together for global education empowerment.
International Chamber for Service Industry extends you a very warm welcome to be a part of our this particular Havan Kund. इस हवन में साथ आइए. Let's be a part of this confluence. Let's be a part of this podlock. Let's be a part of this process. Let's be a part of this प्रयास. And आप अपनी हवन कुंड में सामग्री डालिए. आप अपनी ईमेल भेजिए innovation@icsi.asia पर, and we would be more than happy to have all of you. So this is going to be, ladies and gentlemen, we have given both the WhatsApp numbers also here. Should you wish to share anything, you can. You want to send email, you're more than welcome. And with these words, let me extend this evening a very warm welcome. पहले तो ये 6 बच्चियां हैं जिन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं और बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से. ये बच्चे जीवन में और आगे बढ़ें. हमारे साथ आज अंशिका जुड़ रही है, वंशिका जुड़ रही है. वाह, क्या रिदमिक नाम है. इधर अंशिका, इधर वंशिका. वाह, अपने नाम का भी मीनिंग हमको बाद में बताइएगा. फिर साक्षी जुड़ रही हैं, फिर महक जुड़ रही हैं, ये बहुत सारी खुशबू फैलाएंगी. फिर खुशी जुड़ रही हैं. वाह, कितने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं आपके पेरेंट्स ने आप लोगों के. और फिर डोरी जुड़ रही हैं. वाह, डोरी 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 डोर से जुड़ते हैं. वाह. So, ladies and gentlemen, with these 6 children, I have also got a distinguished guest this evening with me, and we are privileged to have a lady, Nalini Asthana ji. She is a founder director of Shiromani Welfare Foundation. एक तो नाम ही इनका बहुत अच्छा है, नलिनी अस्थाना, और नीचे शिरोमणि. शिरोमणि बहुत ही पावस है. फाउंडर डायरेक्टर ऑफ शिरोमणि वेलफेयर फाउंडेशन. आपका हार्दिक स्वागत है आज की शाम. She has been a pedagogical trainer for more than a decade and half and has trained more than 2,000 teachers. Proven to be her competence in implementing large-scale training programs, she got the opportunity to impart exclusive training for DIET, SCRT, KVs, and GNVs, and other educational brands. She has also closely worked with the CBSE and NCERT to develop the online contents. She has managed state-level projects of British Council and Delhi government for English language for years together. Being a responsible citizen, ये बड़ा important चीज है. Being a responsible citizen, जहां पर आप अपनी responsibility समझते हैं, she laid her hand to help the society through closely working with the large multinationals like Dell, Intel, and Microsoft on their CSR projects. What a pleasure, ladies and gentlemen. And like it happens in the film celebrations, and like it happens in the Filmfare Awards, and like it happens in any award ceremony anywhere, this evening, let me remove the curtains and let me get my distinguished guests and my fellow panelists and मेरे 6 प्यारे बच्चों को, हम सबको इकट्ठा लेके आए. और आज की इस शाम में बहुत बहुत भव्य स्वागत है आपका, नलिनी जी का और उन 6 प्यारे बच्चों का जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ. जो मेरी सहयोगी हैं, जो हाबुंग मैम संभाल रही हैं सारा टेक्निकल पार्ट. आई वुड रिक्वेस्ट हर टू गेट दो 6 गर्ल्स आल्सो फ्रॉम अटेंडीज टू पैनलिस्ट. लेट देम आल्सो कम ओवर हियर. यू कैन टाई अप विद चित्रा मैम. विद दीज वर्ड्स, नलिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की शाम. आपको बहुत बहुत नमस्कार. और आपको मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्स के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ जो कुछ भी एजुकेशन एम्पावरमेंट में कहना चाहती हैं, जो कुछ भी आप शेयर करना चाहती हैं टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, यूनिवर्स के बाकी लोगों के साथ, कुछ भी आप शेयर करना चाहती हैं मेकिंग एजुकेशन रेलेवेंट, उसके अंदर आई वुड मेक ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. Kindly take on the center stage, and ladies and gentlemen, on behalf of all of us, I extend a very, very hearty welcome to our distinguished guest this evening, Nalini Asthana ji. Namaskar. नमस्कार सर, एंड बहुत बहुत प्रणाम आपको. और
तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस नाचीज को इस लायक समझा कि आपने मुझे इनवाइट किया। और let me confess in front of the entire world that Dr. Gulshan Sharma is no one else to me. He is next to my father. So Dr. Gulshan Sharma, every day I come to see you as I visit my father. So thank you so very much, sir, and welcome. Thank you for welcoming me in such a grand way. So I'm feeling at home now. Yeah. So taking you to the thing, let me tell you one more thing, that I am the fortunate one who has got the opportunity to be acknowledged by him on this conclave twice, and being acknowledged by him both the times, and he has given me a certification plus cash prize, because I also regularly religiously join this हवन, because I feel कि जैसे वो बोलते हैं कि हवन कुंड में हर आदमी की आहुति जरूरी है, तो मैं उसको मान करके उसी हिसाब से चलती हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस तरह से जोड़ने के लिए। और मैं अब जो आपकी बातें हैं उनको आगे शेयर करना चाहूंगी। आप ही की बात बस एजुकेशन में और अपने बच्चों के साथ कैसे जोड़नी है, जिस रेलेवेंस की बात डॉक्टर डीमन करते हैं, दातो रमेश जी करते हैं, और सारे हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट करते हैं डेली, और वो चाहते हैं कि वैल्यू एडेड एजुकेशन हो हमारा, तो उसी पे मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी। और उस लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहती हूँ सर। So here I hope my screen is visible. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस इसको बड़ा कर लीजिए। हाँ जी, हो गया। So sir, I am just going to take another 15-20 minutes and I will just talk about the पंच तत्व से बने इस शरीर में वो 5 कौन से गुण होने चाहिए जो हम एजुकेशन के थ्रू, टीचर्स के थ्रू अपने बच्चों तक पहुंचा सकें, और उनको एजुकेशन में लाने से हमारे एजुकेशन को क्या फायदा होने वाला है। सो उस पंच तत्व तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो we talk about students holistic development every time, and that holistic development is physical, mental, spiritual, emotional and social, and it's again the 5 elements to create this mind, body and character, to make this mind, body, character in a perfect personality. So for that, when we yes, so when we talk about that, we have to take care of the child's holistic development, and that is only through the values which we inculcate through education, through our making our children understand that why we talk about values. So how we will be for the social development, helping children develop positive friendship skills, social values and empathy. Every time you talk about empathy, you say that empathy is the most needed value in a person. And emotional development, where children are supposed to understand the feelings and develop emotional awareness and copying the skills which their elders are teaching them, motivate them to participate and to understand the links between the curiosity, the confidence, the praise, the motivation and learning. Teach them the positive separation. And what is this positive separation? If I talk about positive separation, the positive separation, let me give you a small little example. When we take our child to the school, the parent leave the child on the classroom gate or on the school gate, and the teacher, the pre-primary की वो teacher आती है और बड़े प्यार से come my baby करके ले जाती है। और जब वो ले जाती है तो उसी समय हमारे बच्चे को वो पॉजिटिव सेपरेशन समझ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो वर्ड्स में उसको नहीं रख सकता है, लेकिन उसको समझ तो जरूर आ जाता है कि व्हाट इज पॉजिटिव सेपरेशन। एंड नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स another 3-4 hours I'll be with this lady instead of
of my mama. Resilience, managing life's ups and downs. और ये gradually unknowingly हमारे teachers हमारे बच्चों को बता रही हैं, लेकिन somehow उनको clear नहीं हो पा रहा है कि how to develop that and how to inculcate as a value in them. Managing, making decisions. ना अभी तक हमारे generation तक था decisions were always in the hands of elders. अब इस जनरेशन को, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि इस जनरेशन के पास सारी चीजें हैं, बस उनको थोड़ा सा खुला छोड़ने की जरूरत है समझने के लिए कि what is right, what is right. So problem solving तभी उनको आएगी if we are giving them the power to make decisions and managing their behavior on their own, whether with positive reinforcement, catching them being a good and setting them effective limits. If they are able to understand all this, then only they'll be able to manage their behavior. And also we need to teach them the resolving of how to resolve the conflicts. If they are not able to understand this, they will not be in a position to make a correct decision. They should know how to manage their anger. And if being an elder, I'm not able to manage my anger, how I'll teach my child? How I'll teach my student? So we teachers, we educators have to understand that how to manage. Probably at times we get angry, and but we have to teach our students how to manage it. And playing games, माना कोविड का टाइम है, इस समय बच्चे उसको नहीं अवेल कर पा रहे हैं, बट उसको अवेल करने के का एक ही तरीका है कि आप घर में उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए. जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट मेरी ड्यूटी बनती है कि हम उनके साथ थोड़ा सा खेले भी. और वो खेलने का ठीक है, आपका फिजिकल नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मेंटल एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं, लूडो तो खेल ही सकते हैं, तो वो जरूर करिए. ये उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए मस्ट है. तो जो मैं पंच तत्व की बात कर रही थी, द 5 elements which are very much needed, and the 5S. Sir, if you remember, I have shared this in my email for which you have acknowledged me, and I am taking those 5 elements only forward, and I wish this should reach to our education system where they should make it in the form of a curriculum and spread it all over world. So the first S is, and let me tell you, let me clear this, that this 5 steps is from a group where I am a part, the trainers group, where they take it as 5 pillars and they are spreading it all over the world. They are trying to make it in a big way. So I thought if they are taking it towards the youth and middle-aged people, I should bring it to the education side. So taking that, the first S, सकारात्मक रहे, बी पॉजिटिव. आपने इस पे सर अभी बहुत कुछ बोला, और इसके बाद भी अगर हमें नहीं समझ आ रहा है तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं इस सिनेरियो में. पॉजिटिव रहने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो. देखिए, एक छोटी सी कहानी है, आप ही से सीखा सर, कि छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ. जब आपका जूता खराब होने लगता है तो आप कहते हो अपने नया जूता खरीदो, और हम बड़े खुश होकर के अपने बच्चों को लेकर के नया जूता दिलवाने जाते हैं. बट साथ में जब वो नंगे पैर चलता हुआ एक पैर वाला आदमी दिखता है तो बच्चे को वो भी दिखाओ कि हाउ you are privileged, how you are fortunate that you have the privilege to wear the shoes, and how unfortunate that person is that he's not having the shoe. Still, that person is happy. So develop that kind of positivity in you, because smile and the world will smile back to you. And if you will not smile, nobody is going to. रोने आपके रोती सूरत को बहुत देर तक कोई भी नहीं झेल सकता है. तो ये चीज अगर हम बच्चों को सिखाएंगे कि बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव एंड imbibe the positivity in yourself, because I can is the best motto. Remove the T from there, throw away the T, because nothing is impossible. और आप देखेंगे सर, मेरे जो फाउंडेशन है उसमें मेरा मोटो ही है, yes we can.
वी कैन डू एनीथिंग। एंड इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्वस्थ रहें। और सर डेली आप इस पे बात करते हैं हाउ टू रिमेन हेल्दी, एंड फॉर दैट आई विल रिक्वेस्ट माय चिल्ड्रन टू फॉलो द rules of this number game, 9 to 1 backward counting, 9,000 steps daily, 8 hours of sleep, 7 glass of water, 6 minutes of meditation, 5 servings of fruits and vegetables, 4 breaks for stretching your body as well as your mind, 3 meals, a good, nice, healthy meal, and 2 hours before you go to sleep, put all your gadgets away. Throw it off 2 hours before, keep it aside, and 1 session of exercise if you really want to be healthy. Otherwise, get ready to see the doctors. Thank you so much, sir. So this nine points, if you are following on a daily basis, nobody can stop you to stay healthy and stay fit. Our vitamins, minerals लेते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, इनफ स्लीप लीजिए और टाइमली हर चीज करिए वही। और आप हर बार कहते हैं सुबह उठो, जल्दी सो, तो उस सबको तो पालन करना ही है। तो ये 9 स्टेप आपको शायद बहुत अच्छे लगे और आप इसको जरूर फॉलो करें। ये वेदर यू आर अ टीचर, एजुकेटर और अ parent or a bacha, it is for each and everybody on this universe. If we are following these 8 steps, nothing can stop us to remain healthy. Now, coming to the next S, that is Swadeshi Chune, promote local. And why I am talking about promoting local? Because this is the way we are going to develop the empathic value in our children. If we are telling, let me give you a very small example. If I am asking my child to go to that local vendor or the local sabji wala or the person who is bringing the veggie every day to our lane, instead of going to the mall and giving the money to that already fatty people, so give that money. And definitely, sir, I have seen the smile on the face of these sabji walas. Madam, ले लो, आज बड़ी अच्छी ताजी सब्जी है। तो वो उसको भी एक मेरे प्रति जिम्मेदारी महसूस होती है कि मैडम को ताजी सब्जी दे देना चाहिए, क्योंकि मैडम रोज सुबेरे मेरे से सब्जी लेती है। और इस तरह से हम उसकी ब्रेड एंड बटर का इंतजाम भी कर दे रहे हैं अननोइंगली, और वो मेरी ड्यूटी है शायद, लेकिन फिर भी हम अननोइंगली उसको हेल्प कर दे रहे हैं और हम अपने लोकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। सर एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। अभी मैं कहीं से लौट रही थी और बिजवासन, आपको अगर दिल्ली पीपल, दिल्लीइट्स माइट बी नोइंग, बिजवासन इज अ स्मॉल लिटिल कंट्री साइड ऑफ दिल्ली एरिया, एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम दैट साइड. आई जस्ट स्टॉप्ड देयर बिकॉज आई सॉ वन लेडी एंड अ मैन वर्किंग इन द फार्म in the sunny day, and it was like कैसे ये लोग काम कर रहे होंगे. I just हमने बस इतना ही पूछा, दीदी आप क्या कर रहे हो? She was so happy. कहती है दीदी आपने मुझे दीदी बोला, आप सब्जी ले जाओ मेरे से, देखो मैं यहाँ पे लोबिया और ये सब तोड़ रही हूँ. तो सर मैं बस बता रही हूँ कि how you can connect with people. And in the that lady, she gave everything to me, and when I was offering the money to her, she was so much in tears. She said, आप रुके, इतनी देर बात किए, ये सब्जी इतनी में से तो आधी सब्जियां मैं फेंक देती हूँ, गाय को खिला देती हूँ, लेकिन जो टाइम आपने दिया मैडम गाड़ी से उतर करके, वो मेरे लिए वैल्यूएबल है. See, she is not literate, but she understood the vibes I tried to convey her, and that was the relationship building, and I unknowingly promoted the local. So इसी ये मेरा तीसरा है, स्वदेशी चुने और स्वदेशी बने, और ये आपका भी से है, इसलिए इसको और प्रमोट करने की जरूरत है. नेक्स्ट हमारा है ऐसे बने, be skillful. Every evening you are talking about this, you are talking about our youths. You have started a campaign in the name of Yes. Why? Because you want to see our India to be skillful. You want our India to be completely independent in each and every manner. And for that,
Yes, youth, you have to, because being skillful is next to godliness, in the sense अगर आपके अंदर कुछ भी हुनर है, कुछ भी है, तो वो आपको कहीं ना कहीं जरूर पहुंचाएगा। और इसका ज्वलंत उदाहरण मैं खुद हूँ। मुझे थोड़ा सा बोलना आता था, और बोलते बोलते आज की डेट में, आज मेरी टीचर कहती है कि यू आर द सेम गर्ल who used to sit on that second bench and used to be very quiet. सो कहीं, लेकिन आज उनको ये देख करके बहुत अच्छा लगता है, एंड शी हैज एक्नॉलेज, लेट मी टेल यू वर्ल्ड, दैट शी हैज एक्नॉलेज मी ऑन द social page, that I am very proud of this girl whom she was not knowing in the strength of 70 people. वो neglected बच्चा थी मैं, लेकिन आज वो मुझे पहचान रही है, बिकॉज एक स्किल उनको मुझ में दिखा कि मैं एक उन्हीं की तरह एक अच्छी टीचर बन चुकी हूँ. सो डू व्हाट मेजॉरिटी इजंट विलिंग टू डू to get to where majority never gets to. If you want to prove yourself, you have to be very, very skillful. This was my fourth, and the coming to the last but the most important, संकल्पित रहे, be responsible. And I am really, sir, again हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कि आपने मेरे प्रोफाइल में उसको नोटिस किया कि I am a responsible citizen, and I believe in this, that each and every individual should be responsible towards his country, his fellow members, everybody. And the moment you are responsible, because this R is the most important R in you are. What you are, the R makes you. So for that, I would like to say is because we are being, how to develop this responsibility. Be honest, take care of your own things. If you will teach as a teacher, if you are teaching your students to take care of their own things, as a mother you are teaching your child to take care of his own things, you are making him responsible. Control your feelings and behaviors. This is again a responsibility. You should know how to control everything. Being trustworthy, whether it is related to your family, whether it is to your job, whether it is related to your country, please be trustworthy. And that is again a point of your showing your responsibility towards your system. Making right choice. Always choose the correct thing. Be independent and take care of others' properties too. Keep yourself safe and sound. Make sure that you care for others. So this is all about being responsible. And if you are responsible, you will be doing all these things. And then only if you are doing it, is by nature that child will also adopt the same thing. So these are the 5 keys to open the door of holistic development in a child, to make him a true global citizen. If you really want a child to be a true global citizen, and to make a child a well-groomed citizen, as this tree which I am showing you here, which has a strong bark of wellness, which we talked about in my previous slide. I have talked about कि स्वस्थ रहे, तो अगर आप well रहेंगे तो wellness आपकी ठीक रहेगी, then your mental and physical strength is there to get the full bloom of intellectual bloom, or environmental bloom, or a social bloom, or of a physical, spiritual, occupational. What kind of a bloom if you want to see on this tree, you have to be very, very very concerned about your wellness. So this was about this. And apart from this, I would like to add the 4H in the holistic development of a child. How to add this 4H? What are these 4H? I will say happiness. अगर सीखना है तो डॉक्टर गुलशन शर्मा से सीखिए कि कैसे खुश रहा जाता है, हर हाल में खुश.
हर वक्त हंसते हुए मिलेंगे. एंड humorous, be humorous and make others laugh with you. Healthy, इसकी हम बात कर चुके. And harmony, these 4H is the key to develop a child, and if you really want a holistic development in the child. So these are the 4 things which I want there to be there in a child. And then I will take you to this tree where I am saying that a teacher or a parent relation is very much needed. You can see with this tree that how from one side a teacher and one side the parent is joining, and they both are growing this tree, which is known as the whole child. Whether it is emotional management, whether it is the education, whether it is diet, whether it is teaching gratitude, mannerism, and whether it is connection to nature or yoga. Now, connection to nature, if I will say, I will again take you. See, I hope you might be thinking why I'm talking about Dr. Gulshan Sharma again and again. I feel that अगर कहीं से कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको उठा लो, पकड़ लो और उसको आगे तक ले जाओ. वो माना कि वो रिपीटिशन होगा, लेकिन अगर वो अच्छे के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो आप बात कर रहे हैं कनेक्शन विद नेचर, और हमेशा सर कहते हैं कि आपने बालकनी में, अपने आंगन में, अपने घर में एक पौधा उगाया. आप देखिए, आप अगर आप मुझे कैमरे पे देख पा रहे हैं तो मेरे बगल में भी अजवाइन का पौधा रखा हुआ है, और मेरे घर के हर कोने में कोई ना कोई पौधा मिलेगा जो मेडिसिनल है. तो ये एक आपका नेचर के प्रति जुड़ाव है. और योगा की बात तो रोज होती है, और हर सैटरडे संडे वीकेंड्स पे सर ऑलवेज टॉक अबाउट दिस. सो प्लीज टीचर्स, do try to imbibe all these qualities in our children, and that is our responsibility as a parent or as a teacher. Now I will take you to the other mode of that. So as a parent, as a father, as a mother, we always think that cash is available, we should provide to the child. Sorry, I'm not talking about CASH. I am talking about KASH. And what is this KASH? K, the knowledge, A, the attitude, S, the skill, and H, the habit. If you are imbibing all these in a child, let me tell you all that no wonder the child will be a complete, whole, global citizen. And this is our mission and vision, to take it through education. So instead of giving the cash, CASH, give him the KASH, the knowledge, the attitude, the skill, and the habit. And about this, I have talked a lot in the beginning, so I will not elaborate anymore. एंड अगेन सर, अभी ये सारा माइंड गेम है, और सर के स्लाइड से उठाई हुई बात को मैं दोबारा कहूंगी, व्हाटसोएवर अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव, बिलीव, कैन अचीव. एंड ये मैं इसलिए कह रही हूं कि ये पांचों पॉइंट और कैश का पॉइंट अगर आपने मान लिया तो आप इसको अचीव करके ही रहेंगे. आपको कोई नहीं रोक सकता है इसके अचीवमेंट से. So let's make a motto of our life. Set a new standard, be a leader, and commit yourself. I believe, not doubt. I will create, not destroy. I will lead, not follow, as I am a force for good. I'll defy all the odds. So this is the motto of my life, and I want my children to imbibe this in their lives as well. So thank you for listening. And sir, as always, you ask everybody to sing a song. I will take the liberty to sing a song for you, and that is
ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, ये हौसला कैसे रुके। राह पे काटे बिखरे अगर, उस पर तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा रात ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity, and this was my motto to give you all back, which you every day pursue with the entire world. So I thought I should give this back to my father figure and to the world as well in this manner. Thank you very much. Thank you very much. Such an inspirational, such a motivational, in such a simple way. आपने सारी चीजों को इतने अच्छे से पिरो दिया, सब कुछ इतने अच्छे से बताया, और आपने जो बिजवासन के पास का एग्जाम्पल बताया, आई एम बोर्न इन द आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, और पालम के एरिया में रह के तो शाहबाद, शाहबाद के बाद बिजवासन, बिजवासन के बाद गुड़गांव. आई रिमेम्बर ऑल दोज प्लेसेस सो वेल. So God is very kind, and we pray to Almighty that many more such people. You took initiative. You were convinced inside that I have to come on this platform. I have to empower the humanity. I have to empower the youth. I have to get connected with the educators. So आज आप यहाँ पर हैं, और उसी तरीके से आपकी तरह नलिनी मैम बहुत सारे और लोगों को भी मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा, हिम्मत कीजिए, आगे आइए, और आप लोग ईमेल भेजिए innovation@icsi.asia पर, innovation@icsi.asia. और पता नहीं क्या है, हमने सोचा था कि 15 अगस्त तक इस कैंपेन को चलाएंगे, लेकिन चारों तरफ से, पूरे ब्रह्मांड से इतनी एनर्जी, इतने लोग मिल रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इसको आप 31 दिसंबर तक चलाइए, और आज सुबह कुछ लोगों से मिलके, कल पूरा दिन स्कूल एजुकेशन का प्रोग्राम था, आज हायर एजुकेशन का प्रोग्राम था, तो मैंने अपने आप से एक प्रण किया कि जब तक जीवन है, ये प्रोग्राम मैं 7 से 8 बजे का शाम को, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को संसार में जोड़ना है, और बहुत सारे लोग हैं जो झिझकते हैं, जिनके अंदर एनर्जी है, जिनके पास आइडिया है, जो क्रिएटिव हैं, जो एम्पावर्ड होना चाहते हैं और एम्पावर्ड हो सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सबको आगे लेके आना है. और जो आपके पास अजवाइन का पौधा लगा हुआ है, उस अजवाइन को जब भी वो अपने रूप में आए तो हमें बताइएगा, क्योंकि मैं चाय के साथ अजवाइन रोज लेता हूँ, एंड आई लव अजवाइन. इट इज नोन दैट डॉक्टर गुलशन शर्मा विद टी, यू नो, आई ऑलवेज टेक अजवाइन, और कई बार भुनी हुई जो अजवाइन भी. देखिए कहाँ से कहाँ है. और वो आपके पीछे का पौधा क्या है मैम? एक जो पीछे भी पौधा लगा हुआ है आपके? सर वो कैक्टस है. वो नहीं. नहीं, it's a flowery cactus. It gives blooms. Yes, it blooms. Okay. So, ladies and gentlemen, it's such a wonderful evening. लेकिन मैडम, अब आपको हम 6 बच्चियों से भी मिलवाएंगे. आज की जो 6 वंडरफुल बिटिया हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो बच्चे भी 6 हमसे बातचीत करेंगे, और एक एक करके इन सब बच्चों को आगे लेके आते हैं. सो सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट वंशिका, I can see you. Unmute your mic, child.
आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड नमस्कार ब्लेस यू। सर। कैसे हैं? गुड गुड इवनिंग बेटा, इवनिंग कैसे टू हो? ऑल। सर मैं एकदम ठीक हूँ। इट्स सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मी बिकॉज यू नो व्हाट, ओके मैं बहुत बार ऐसे मोटिवेशनल चीजों का पार्ट रही हूँ, बट आई हैव नेवर सीन समवन लाइक सो इंस्पायरिंग, लाइक इन माय एंटायर लाइफ आई हैवंट सीन सच पीपल। अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है बेटा। अच्छा बताओ, मम्मी पापा ठीक है? हाँ मम्मी जी, पापा घर अच्छे पे से सब हैं? ठीक। घर में सब अच्छे से हैं? हाँ जी सर। ओके। वंशिका, आप अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं बेटा? मैं अभी 12th क्लास में हूँ एंड आई एम इन स्ट्रीम कॉमर्स। ओके, आप 12th क्लास में हैं और कॉमर्स में हैं। आपकी हाँ हॉबीज जी। क्या है बेटा? मेरी हॉबीज इज जस्ट डांसिंग, एक्टिंग ओके। हाँ। and writing quotes ओके। and talking to people. Just like ओके। some people say that I talk a lot, but ओके। I feel कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ उस चीज में। वेरी I गुड, feel वेरी happy गुड। inside. बातचीत करने का भी तो एक जॉब है। एंकर लोग क्या करते हैं? इतना ही तो बोलते Exactly. हैं, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हार्टी वेलकम, इतना बोल बोल के देखिए कितने पैसे ले जाते हैं। वेरी गुड, दैट्स आल्सो प्रोफेशन, दैट्स आल्सो स्किल, दैट्स आल्सो Yes, जॉब। sir. ओके। आप ये बताओ कि कोई एक कोट आपको याद है जो आप सारे संसार में सबसे कहना चाहेंगे? बिकॉज आप कोट्स के बारे में बात कर रहे थे ना। Yes, मैं quotes तो नहीं, बट मैं एक चीज बोलूंगी सेल्फ बोलिए लव पे। बोलिए। हाँ बोलो कि बेटा। लोग हमेशा ऐसे समझते हैं कि अगर मैं उसके जैसा होता या फिर मेरे पास ऐसे लोग होते अपनी लाइफ में, लेकिन मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है कि वो लोग ये बोलते हैं कि यार हमारे मम्मी पापा ने ये तो करा पर ये नहीं करा। यार एटलीस्ट कुछ तो करा। जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मम्मी पापा भी नहीं है। सो पहले ओह। खुद से प्यार कर लो यार, फिर हाँ, बाकी चीजें करना। बिकॉज हाँ। सेल्फ लव इज लाइक, आप दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो कि लोग आपके बारे में ओके। क्या सोचते हैं। जस्ट लव योर सेल्फ, लव योर सोल। Love yourself and love your soul. Love यस, yourself and love your soul. Love यस। yourself and love your soul. God bless you. God bless you. थैंक Big यू सो clap for मच। you. Big clap for you. Good, थैंक good, यू सो good, मच good. सर। Okay, Dory, can you hear beta? Dory? Oh, Dory, can you hear beta? Yes, sir. Okay, good evening, child. How are you, beta? Good evening, sir. I'm amazing. And you Good, speak. good, good. मम्मी पापा कैसे हैं? सब लोग कैसे हैं बेटे? सर सब बहुत अच्छे हैं। घर में आपकी बातें सुन के तो और अच्छे हो गए। नहीं नहीं नहीं, घर में सब अच्छे से होने चाहिए, सब ठीक से रहें। आपके आस पड़ोस में भी लोगों का आप ख्याल रखते हैं बेटे? हाँ जी सर। गुड। आप कौन सी क्लास में हैं? आई एम इन 12th साइंस मेडिकल। यू आर इन 12th साइंस। ये मैं पहला बच्चा देख रहा हूँ जो साइंस वाला मुस्कुरा रहा है। साइंस वाले तो बहुत सीरियस रहते हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए हमेशा। पता नहीं कुछ लोग इतने सीरियस होते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती। और लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। वेरी गुड। ओके। आपके Exactly. हॉबीज क्या है बेटा? आपके हॉबीज क्या है? Sir, I love to play. Basically, I'm a sports person. I'm a chess player. I love to play golf, volleyball. तो मतलब I love all the sports. It's not ओके। कि अपने आप को ओके। restrict करो, आप मुझे कोई भी sports दे दो। I ओके, would love चलो to play all the sports. चेस की बातचीत करते हैं। चेस की बातचीत करते हैं। जब हम चेस खेलते हैं बेटा, तो उसमें, क्योंकि मुझे तो खेलना नहीं आता है चेस, लेकिन जब चेस खेलते हैं तो कुछ सोचते रहते हैं और फिर कुछ देर के बाद हम एक उसमें चाल चलते हैं, फिर आगे होते हैं। तो बेसिकली चेस से एजुकेशन के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप स्ट्रेटजी सीखते हैं, या आप मैनेजमेंट सीखते हैं, या आप नेटवर्किंग, क्या चीज सीखते हैं चेस से? सर सबसे पहली चीज तो मैं कहूंगी हम पेशेंस सीखते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चेस से हम पेशेंस सीखते हैं, क्योंकि जब आप पेशेंट होंगे, कूल होंगे, तभी आप अगली चाल ठीक से चलेंगे। सो पेशेंस सीखते हैं। ओके, व्हाट एल्स बेटा? एक क्वालिटी और चेस से। इट्स नॉट दैट कि आप हमेशा अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल सकते। दैट व्हाट यू थिंक वुड हैपन, आप सामने वाला जो चाल चलेगा आपको उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग वोंट गो अकॉर्डिंग टू यू। वाओ, सो अडेप्टेबिलिटी। ओके, वेरी गुड, अडेप्टेबिलिटी। सो आपको कूल भी रहना है और अडेप्टेबल भी होना है। वर्ल्ड की सारी गर्ल्स को जो आप जैसी हैं 12th में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप?
क्या कहना चाहोगे बेटा सब बच्चों से? Sir, I would say that our thoughts presents our with shape our vision. हमें अपने थॉट्स को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि वो ही हमें आगे जाके हमें आगे को प्रूव करे. मतलब हम जो चीज देखेंगे हम वही चीज सीखेंगे. हम जितना Okay. अपने आप को पॉजिटिव चीजों से सराउंड करेंगे उतनी चीजें पॉजिटिव रहेंगी. Okay, okay. So we have to have a positive thought. Yeah, and the major thing I would say for everyone, not just for the youth, that everyone wants to become someone, but nobody wants to grow. Like everyone has an ideal कि हमें इसकी तरह बनना है, हमें उसकी तरह बनना है. Nobody wants to be themselves. Like I want to be first Dori Sharma. I don't want to be someone else. I want to grow more. Because when we follow someone, we just restrict ourselves कि हमें इनकी तरह बनना है. Wow. We are proud of your teachers. We are proud of your principal. We are proud of your parents. We are proud of your family. And God bless you, child. Do well in life. Okay. उसके बाद हमारे पास ये एक बच्चा और है, महक. महक, good evening. Can you unmute your mic, महक? Good evening, sir. Good evening, मेरा बेटा. कैसे हो बच्चे? Sir, I am fine. What about you? बस ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से. महक, आप क्या कर रहे हो बेटे? आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो? Sir, I have taken humanities stream and now I am in class 12th. ओह, क्लास 12th है और ह्यूमैनिटीज में है. Yes, तो sir. अच्छा, आपके क्या हॉबीज है बेटा? Sir, in my free time, बस मैं self talk करती हूँ, मतलब अपने आप से बातें करना, because it all boost my encouragement and so मैं self talk ही करती हूँ अपने फ्री टाइम में. मतलब मुझे दूसरों से इतना बातें करना मतलब बातें मुझे करना अच्छा नहीं लगता. मैं अपने आप से बातें करती हूँ. अपने आप से बात करने हैं. ओके, वेरी गुड. कोई भी अपने आप टॉपिक से जब बात करते हो तो पॉजिटिव बातें करते हो? पॉजिटिव, नॉट एवरी टाइम पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव ऑल्सो, बट कभी भी अपने आप को, क्योंकि कोशिश करो हमेशा पॉजिटिव. लेकिन लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो हमें दोनों एस्पेक्ट से सोचना चाहिए. बट लेकिन नेगेटिविटी को हमेशा कम करना है, पॉजिटिविटी को आगे रखना है. ठीक है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मम्मी पापा वगैरह सब ठीक है बेटा? यस सर, ऑल आर फाइन. ओके, anything you would like to tell the whole world, girls those are studying in 12th class humanities? आप सब गर्ल चाइल्ड से कुछ कहना चाहेंगी? Yes, sir. I just want to say only a quote. That's all. It's like nothing to join the crowd. It's like everything to stand alone. So we should not depend on another for each and everything. We should be self-dependent. That's all I just want to say. Because being a girl, हमें अपनी पूरी life में बहुत सी problem face करनी पड़ती है. In this modern world also, that we have to face a lot of problem. So in this phase, we have to stand alone. And first of all, we should be self-confident that I can able. Okay, so we got to be bold. We got to be bold, and we got to be self-dependent. Okay. Yes, sir. So I just want to say one thing. बोलो बेटा. So we are fortunate one that we got this opportunity to attend this webinar because that was fabulous. देखो 3 बच्चे बोल चुके हैं, वंशिका बोल चुकी है, डोरी बोल चुकी है और महक बोल चुकी है. तब फायदा होगा जब आप महक फैलाओ इस प्रोग्राम की और आप इसको दूर दूर तक लेके जाओ. वॉच पार्टी में, ट्राई माय बेस्ट. आप सबको बताओ, सारे टीचर्स को भी बताओ, वेबिनार पे रोज आओ, अच्छी अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो और अपने सजेशंस दो, अपने आइडियाज दो. कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता. मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, अगर आज एक महक आई है तो कम से कम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मुझे 100 लोगों को अपने साथ जोड़ना है जिनको मुझे अच्छा करना है. वैसे ही वंशिका भी आई, उसी तरीके से डोरी भी आई. तो हर एक को ये कोशिश करे, क्योंकि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हम तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए बेटा. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, गॉड ब्लेस यू एंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. अपने मम्मी पापा को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार बेटे. और अब मैं चलता हूँ. अंशिका, गुड इवनिंग. अंशिका, गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग सर. कैसा है हमारा बच्चा? अंशिका कैसे हैं? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मम्मी पापा कैसे हैं? सब लोग घर में कैसे हैं? सर सब बहुत अच्छे हैं. आई एम हाईली ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग टू टॉक टू यू.
अच्छा अंशिका, ये बताओ बेटे आप कौन सी क्लास में हो? 12th कॉमर्स। अच्छा, आप 12th में हैं और आप कॉमर्स में हैं, और आपकी हॉबीज क्या है बेटा? Sir, I can say singing and I am very photogenic ओके and I तो like expressing my views and feelings. ओके, कोई गाने की एक लाइन सुनाना चाहोगे बेटा? कोई किसी एक गाने की, Sir, गाना कौन सा? कोई सा भी। अब देखो आपने कहा ना सिंगिंग, अभी देखो ये तो आपका, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आपको सुनना चाहता है। इफ सिंगिंग इज योर हॉबी, यू कैन सिंग एनी सॉन्ग, पूरा वर्ल्ड सुने आपको, तो कोई अच्छा गाना, कोई एक लाइन सुनाइए आप कोई भी एक गाने की। Sir, कौन सा गाऊं? Will you ever come find me? Will you ever come find me? Will you ever be mine? Need you now, hold me closer. Yes, sir. थैंक यू अंशिका, गॉड ब्लेस यू बेटा। और देखो जैसे मैंने बाकी बच्चों से बातचीत की, अंशिका से भी, महक से भी, डोरी से भी और आपसे भी, आपको बहुत सारे बच्चों को एम्पावर करना है बेटा। आपको बहुत सारे लोगों को, टीचर्स को, सब लोगों को इस ग्रुप के अंदर आना है, और आपने भी रोज आना है, ताकि हम सब लोग आगे इस ग्रुप को लेके चल सकें और हम लोग इसको बहुत पावरफुल बना सकें, ताकि सब लोग अपने आइडियाज शेयर कर सकें। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू वर्क आउट। Okay, where is now Sakshi? Where is Sakshi? Sakshi, are you there? Are you there, Sakshi? Okay, Khushi is there. Khushi, good evening, beta. How are you? You can unmute your mic, Khushi. Can you unmute your mic, child? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरा बेटा, कैसे हो बच्चे? ठीक हूँ सर। मम्मी पापा कैसे हैं? घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है सर। सब अच्छे से हैं। ओके खुशी, हमको ये बताओ आप कौन सी क्लास में हो बेटा? सर 12th आप 12th ह्यूमैनिटीज। क्लास में, कौन से स्ट्रीम में हो? ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में। ओके खुशी, वैसे तो नाम ही कितना अच्छा है आपका। आपकी हॉबीज क्या है बेटा? सर एक्चुअली मेरी मेन हॉबी जो मतलब मुझे अच्छी लगती है वो बैडमिंटन ही है। मतलब बैडमिंटन। ओके स्पोर्ट्स में बहुत। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये बड़ी अच्छी खुशी मेरे को हो रही है कि जो बच्चियां इस प्रोग्राम में आ रही हैं, द गर्ल्स, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। वो आपको फिट भी रखेगा, तंदुरुस्त भी रखेगा, अच्छा भी रखेगा, सब कुछ रखेगा। ओके अगर आप बैडमिंटन के लिए हैं तो मुझे ये बताइए कि इंडिया का बैडमिंटन का टॉप प्लेयर कौन सा है? ये तो आप ही को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने बैडमिंटन का, आपकी हॉबी है। अगर मैं ये कहता हूँ मेरी हॉबी है तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आप बताइए, एनी आइडिया? हाँ सर, साइना नेहवाल फ्रॉम इंडिया। ओके चलो कोई बात नहीं, हम हंस लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन है, तो जो तुमने बोला मैं वही मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। ओके चलो, और पढ़ाई अच्छे से आपकी चल रही है? यस वेरी गुड। सर, आप और मतलब बच्चों मैं- को इस प्रोग्राम, आप और बच्चों को इस प्रोग्राम में लेके आएंगे? श्योर सर, व्हाई नॉट। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंडिया के जुड़ेंगे तो तभी हम एजुकेशन को एम्पावर कर पाएंगे। यस और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारी जिंदगी में काम आए। सर, मजा भी आए और ऐसे करने में, एजुकेट हाँ, होने में। एजुकेशन, यस, एजुकेशन शुड बी। इसीलिए मैं रोज म्यूजिक थेरेपी की बातचीत करता हूँ। देखो आज नलिनी मैम ने गाना भी सुनाया सारे बच्चों को। तो एजुकेशन में इसीलिए मैं रोज कहता हूँ कि टीचर्स को एजुकेशन शुड बी फन, एजुकेशन शुड बी स्टिमुलेटिंग, एजुकेशन शुड बी मेकिंग एंटरटेनमेंट, और बच्चों को खुशी हो पढ़ने में। किसी भी पढ़ाने का, किसी किसी टीचर की क्लास बहुत अच्छी लगती है और किसी टीचर की क्लास अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती है? तो क्योंकि मजा नहीं आ रहा होता है। तो पढ़ाई में मजा आना चाहिए, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बच्चा रह गया, साक्षी। अब साक्षी कहाँ पर है? साक्षी मुझे इसमें नजर नहीं आ रही है। आई थिंक शी हैज नॉट कम टुडे, otherwise Sakshi was also supposed to be there, but anyway we are missing one of the girl today.
we would like to convey our deep gratitude and thanks to Nalini Asthana ma'am, and we would like to convey our deep regards and lots of blessing and lots of thanks to all these kids, all these children. ये बच्चे हमेशा महकते रहें, ये बच्चे हमेशा चहकते रहें, ये बच्चे सारे संसार में पॉजिटिविटी लेके चलें और ये बच्चे खुशियां लेके आएं। और ये वाला जो वीडियो है, ये सारे बच्चे बाद में डॉक्टर गुलशन शर्मा के पेज पे फेसबुक पर देख सकते हैं। जितने भी बच्चे आज ज्वाइन किए हैं, जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, आप डॉक्टर गुलशन शर्मा के पेज पे देख सकते हैं। और अब से 1 घंटे के बाद इसको आप YouTube पर भी देख सकते हैं, हमेशा रहेगा ये प्रोग्राम। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज आप सब सेलिब्रिटीज हैं, आप आज पूरे संसार के साथ जुड़े हुए हैं, सारा संसार आज आपको देख रहा है। और अलग अलग जगहों में जितने भी लोग हैं वो सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज की शाम आप, यस मैम, लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड। यस Yes, sir. As these girls were there, and being a girl, a lady, I just want to convey these girls and all the girl in this universe that जो मैंने गाना गाया है उसका एक रेलेवेंस है। ये हौसला कभी छूटे नहीं, तो हमेशा हौसले के साथ रहिए आप बच्चे लोग, और ये मान के चलिए कि जो होगा वो अच्छा होगा। और हरवंश राय बच्चन का एक कहा हुआ है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो आपके मन का हो अच्छा है, और जो आपके मन का ना हो वो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें उसकी मर्जी है। यस यस। तो इसलिए कभी डिसहार्टन मत होइएगा आप लोग, और कभी भी कोई रॉन्ग स्टेप मत उठाइएगा, बिकॉज आप जो एक आपका रॉन्ग स्टेप बहुत लोगों को इफेक्ट कर जाएगा। तो हमेशा हौसला टूटने मत दीजिएगा अपना। Wonderful, Be wonderful. positive. Thank you very much, Nalini ma'am. God bless you, and God bless all these my children. You all joined us, and thank you very much to all the participants who joined in this program from world over. और फिर मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक और प्रोग्राम के साथ। और हमारे कल 2 सेलिब्रिटीज आ रही हैं, and they are coming from the Middle East. They are coming together. They are going to talk to all of you. So wait for tomorrow evening. और दूसरा, जैसा मैंने आपसे कहा, YouTube पर भी जाइएगा। YouTube पे पुराने सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जितने भी प्रोग्राम है 4000 से ज्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे। और उसी के साथ साथ जो आज का प्रोग्राम है ये भी YouTube पर जाएगा, और फेसबुक तो साथी के साथ रिकॉर्ड होकर चला गया, एंड यू कैन सी डॉक्टर गुलशन शर्मा पेज। और आपसे एक ही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, जोड़िए, और हम सब लोग इस कैंपेन को आगे लेके चलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की शुभ रात्रि आप सबको, विश यू ग्रेट इवनिंग, एंड जय हिंद एंड जय भारत, एंड सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के